Yes, guys, just a second. Let me present it to you. Yes, I welcome you all to Pinnacle Guidance Tutorials. So, today we are starting with our first session on number system. Fine, number system is a really big topic. Okay, it comes in any of the aptitude exams. You may you may aspiring for any MBA exams like CAT, SNAP, NMAT, XLRI, anything. Fine, ZAT, or you may be aspiring for any of the SSC exams like SSC, GL, CHSL, MTO, CPS. Fine, or you may be aspiring for any defense exam like NDA, FCAT, CDS, INET, or so this number system fine is really a really important topic for you. Okay, so yes, this number system is not just important, it's actually a big topic. When you even merge your English and logical reasoning, or you can say reasoning syllabus, okay, then also the quant aptitude this quantitative mathematics syllabus is really very large. Okay, so yes, number system is actually a subject which is important, fine, but less prior. Okay, so if you have less amount of time to study for exam, you should not and I'm not saying you should just neglect it, but you should give less time to this chapter. But yes, question many a times come from this many a times come from this chapter, or you can say subject, or you can say section. Okay, so yes, moving on with our, so today's is our factors. So before moving on, what do you think are factors? Factors are actually let us suppose 10, the factor of 10 is 2 and 5. Okay, so how many factors does 10 have? It has 2 factors, 2 and 5. Fine. So it has actually 1, 2, 5 and 10. These are the 10 factors of 10. What are factors? Factors as any number which divides you that number is the factor of that number. Fine. And n is a factor of m if n divides, wholly divides, completely divides m. Fine. So yeah, okay, so moving on with the first question. You are getting 35 seconds. Yes, 35 seconds to solve this question out. I'm going on mute. Just a second. I'm just a second. Yes. Okay. Going with your 35 seconds. So yeah, so what do you think? How will you find the total number of factors that are possible of 100? You cannot here you can see that 100 is not that big number, but you cannot go count every number, okay, and find the total number of factors of 100. Fine. Okay, so yes, there is a procedure to find it, the number of factors. Okay, so start with it. Okay, so the answer is 9. Okay, but how do you write 100 in terms of any prime power? Okay, because any number can be written in the form of primes, power, or squares, cubes, you can say,
प्राइम की पावर में कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, ठीक है. सो हेयर 100 इज़ 2 की पावर 2, दैट इज़ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर. फाइन, तो ये 100 हो जाता है. फाइन, ठीक है. तो अब आप ये देख रहे हो 2 स्क्वायर में से हम लोग के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम लोग एक फैक्टर को बनाने में कर सकते हैं. हम लोग एक भी 2 का वैल्यू नहीं लेंगे, या एक 2 की वैल्यू लेंगे, या दोनों 2 की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है. हम लोग यहाँ पे एक भी 5 नहीं लेंगे, ठीक है, या एक 5 लेंगे, या फिर दोनों 5 ले लेंगे, ठीक है. तो हम लोग के पास ये टोटल कितने ऐसे आ गए, हम लोग के पास कितने मतलब वो बन गए कि 2 की पावर, एक तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है. तो हम लोग ये कैसे बन गए, अब आप देखें. एक तो ये हम लोग का बनेगा कि हम लोगों ने ना ये 2 लिया ना ही 5 लिया, तो हम लोग की क्या बन गया 1. जब आप कोई भी नंबर नहीं लेते तो एक कॉम्पोजिट नंबर अपने आप 1 आ जाता है, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, आइदर आप 2 की पावर 0 ले रहे हो, 5 की पावर 0 ले रहे हो, तो वो क्या हो रहा है 1 ही हो रहा है, ठीक है. इसके बाद आप क्या लिख सकते हो कि सिर्फ हम लोग ये 2 की पावर 1 लेंगे, ओके, और हम लोगों ने इधर से 5 की पावर 0 ले लिया. फिर हम लोग 2 की पावर 2 ले लेंगे, इधर से 5 की पावर 0 ले लिया, ठीक है. इसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, सिर्फ हम लोग 5 की पावर 1 लेंगे और इधर 2 की पावर 0 ले लिया, तो क्या बन गया 5 बन गया. फिर हम लोग 5 की पावर 1 लेंगे और 2 की पावर 1 ले लेंगे, तो हम लोग का क्या बन गया 5 इंटू 2 10. 5 की पावर 1 लेंगे और 2 की पावर 2 ले लेंगे, तो 5 इंटू 2 की पावर 2 4, मतलब 5 इंटू 4 20, ठीक है. फिर हम लोग इस पे आए तो 5 की पावर 2 25, और यहाँ पे 2 की पावर 0 1 तो 25, 5 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 1 50, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे 5 की पावर 2 मतलब 25 और 2 की पावर 2 4, 25 इंटू 4 100. तो 100 के कितने पॉसिबल फैक्टर्स बने, 9. कैसे बने, 1, सिर्फ इसको इन दोनों को ले लेंगे 1 के बाद आ गया 2, उसके बाद आ गया 4, अब इसके स्टार्ट करेंगे तो ये आ गया 5, फिर आ गया 10, फिर आ गया 20, ठीक है. फिर अब इसके साथ करेंगे तो ये आ गया 25, ये आ गया 50, ये आ गया 100. तो ऐसे हम लोग कितने पॉसिबल वेज है 9, ठीक है. अब आप इसको पीएनसी में भी मतलब ऐसे उठा सकते हैं, ठीक है. तो हम लोग के 9 पॉसिबल फैक्टर्स आ गए, ठीक है. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप कि आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग इसके अभी भी एक मैं इसके ऊपर दो तीन सेशन मैं इसके ऊपर लूँगा, ठीक है. सो यस, योर 35 सेकेंड स्टार्ट्स. फाइन, ओके. सो यस, अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे आपको ये दे दिया है, इसका कोई फ़ायदा है. अगर मैं इसको यहाँ पे मैं सिर्फ एक बॉक्स भी बना दिया कि जिसमें आपको सिर्फ आंसर टाइप करना होता, तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आता, क्योंकि आप कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस की हेल्प, असिस्टेंस, आपको कुछ हेल्प हो नहीं रही है, ठीक है. सो इसमें भी सेम आपको फॉलो करना है. तो अब हम लोग का बस अभी मैंने इसलिए सेम ही ऑलमोस्ट सेम है, बस 2 की पावर 1 यहाँ पे हो गई और 5 की पावर 3 हो गई, ठीक है. तो अब यहाँ से आप कितने उसमें आ सकते हैं, आइदर 2 की पावर 0 आएगा या 2 की पावर 1 आएगा. इधर कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं. 2 की पावर 5 की पावर 0 आ गया, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 आ गया. तो ऐसे तो पता चल गया, यहाँ से 2 आए, यहाँ से ऑल 4 आए, 8 पॉसिबल. अब आप मैं प्रूफ भी करा देता हूँ. 8 पॉसिबल अगर आए हैं तो उनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, सिर्फ इन दोनों को लो तो फिर ऐसे सिर्फ ऐसे ऐसे पूरा कर लो. इसको और इसको ले रहे हो, सिर्फ अभी इसको फिक्स कर दो, मल्टीप्लाई पे इन सबको एक एक साथ करते रहो. तो क्या आ गया, 5 आ गया, वो सॉरी 1 आ गया, 1 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है, और 10 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, और
तो वो 10 बता रहे हैं, 25 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर एंड 125 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। अब सिर्फ इसको कर दो और इसको कर दो, ठीक है। अब इसको और इसको कैसे कर सकते हो, इधर आ गया 2 आ गया इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, 10 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, 50 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर एंड 250 इज़ ऑल्सो फैक्टर। तो जब आप गिलेंगे एक ये पूरा सीरीज़ को इसके साथ, एक पूरी सीरीज़ को इसके साथ, तो 4 + 4 मतलब या फिर 2 × 4 8 पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है। एंड यस, अगर कोई भी आपको डाउट हो रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ और एनी ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस, यू कैन कमेंट आउट देयर और यू कैन मेल मी, मेरा मेल इसी डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो के। फाइन, सो मूविंग अहेड, you are getting 35 seconds to solve this question out. सो या टाइम्स अप। मैं 35 सेकेंड्स अभी इसलिए दे रहा हूँ सो दैट आपको एक मेंटल प्रेशर बना रहे हैं और वहाँ पे, ठीक है, ये 35 सेकेंड्स में अभी सिर्फ सीजल मतलब अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बैंक या फिर मतलब डिफेंस या फिर आप इसके लिए बैंक के लिए बैठे हो, तो इस लेवल के क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो तो कोई भी आपके लिए वो नहीं है, आते हैं इस लेवल के क्वेश्चन। ये मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आप आंसर कर दोगे। कॉन्सेप्ट आपने वीडियो नहीं देखी, आपको नहीं पता होगा, फाइन। और ये शायद ही कहीं पे आपको पढ़ाया जा रहा हो, मुझे नहीं पता कहीं पे आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो 30 में क्या क्या होता है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 0 या ले लो, 1 ले लो, यहाँ पे 0 ले लो, 1 ले लो, या 0 ले लो, 1 ले लो। तो हमारे पास ऑप्शंस कैसे कैसे रहे, यहाँ से 2 आए, यहाँ से 2 आ गए, तो यहाँ से 2 आ गए। तो 2 × 2 × 2 इज़ इक्वल टू 8 पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है। अब आप वैसे ही देख सकते हो इसके 8 कैसे होंगे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 15 होता है एंड 30 होता है, ठीक है। सारे 8 पॉसिबल फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ठीक है। 30 में मतलब सारे ही ये प्रेजेंट होंगे, सबके पावर 1 हो जाएगी, फाइन। हाँ, मतलब ऐसे ही आपको इसमें अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो आप क्वेश्चन कितना, मैं 35 सेकंड से इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। अभी न्यू है, आप कस्टम नहीं है, थर्ड क्वेश्चन ही है, वरना तो ये कितना हार्डली 20 सेकंड्स है, क्योंकि आपको, हाँ ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे आपको 30 देंगे, 25 नहीं, इतने छोटे छोटे भी नहीं, वैल्यूज़ आपके लिए बड़ी आएंगी थोड़ी, मतलब 3 डिजिट्स की वैल्यूज़ आएंगी। सो आपको ब्रेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, वो भी आप अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 सेकंड्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं होता है। सो आगे बढ़ें, ओके। सो 35 सेकंड्स मोर फॉर यू। सो टाइम्स अप। देखिए, मैंने आपसे बोला ही था कि नंबर बड़े आ सकते हैं एज इफ़ ये वाला, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हम आपको ये जैसे ही 5 दिखे, अभी तो मैं आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स भी सब इसी में, ये सब नंबर सिस्टम्स में आते हैं। नंबर सिस्टम बहुत वास्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। सो इससे कर लो ना तो आपके मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस बड़े ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपने 5 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो आपका सीधे सीधे आपको एक नंबर मिल जाएगा, जैसे 5291, ठीक है। अब आपको
अगर 11 की डिविजिबिलिटी पता होगी तो आप सीधे सीधे 11 की डिविजिबिलिटी भी कोई ऐसी टफ नहीं होती है, ठीक है। अब बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, हाँ 11 की डिविजिबिलिटी है। फिर उसके बाद 13 और 37 की डिविजिबिलिटी पे एक काम आता है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जब वहाँ पे डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आप इसको भी आराम से डिवाइड कर लेते हैं। वही बोल रहा हूँ कि आप मेरी क्लासेस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें रेगुलरली आ जाएंगे। तो अगर प्लीज़ कोई भी ऐसे सोचता है कि मैं 20 से वापस वो कॉन्सेप्ट बता दूंगा, हाँ मतलब मैं आपको वापस समझा सकता हूँ, बट हर उसमें फिर क्या होगा कि मेरी वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी और आपकी प्रैक्टिस कम होगी, ठीक है। तो आप पीछे के मेरे जितनी भी वीडियोस हैं एक बार उनको देखिए, आप बार बार नहीं समझ में आ रहा आप मुझे कमेंट करके या फिर मुझे आप मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की पावर 01, 11 की पावर 01, 13 की पावर 01, 37 की पावर 01, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, ठीक है। ये मत सोचिए कि नंबर बढ़ा इसीलिए 16 पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ देखिए, ये एक तो 30 था और यहाँ ये देखें ये 250 था, इसके भी 8 ही थे और इसके भी 8 ही हैं, तो वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड करेगी प्राइम पे आपके कैसे कैसे पावर्स में है, ठीक है। तो यस, लिखे हुए 1 है, 5 है, 11, 13, 37, 55, 65, 143, 185, 40F7, 481, 715, 2035, 2405, 5291, 26, 455, ये 16 फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गेटिंग 35 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट। सो क्या है, 55 है, इजी है, 5 है, 11 है, 5 की पावर 01, 11 की पावर 01, 11 की पावर 01, ठीक है। तो फिर 2 इंटू 2 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 होगा, 5 होगा, 11 होगा, 55 होगा। इजी था, कोई इतना इसमें बड़ा डील था नहीं, सो दैट कि आप लोग कर ही नहीं पाते। ऐसे ही जैसे हम लोग पुराने करते आ रहे हैं, एज इट इज़ वैसे ही हो रहा है, ठीक है। अब ये 01 क्यों, मतलब 01 तो मैं बता ही चुका हूँ, 01 इसलिए आइदर आप 5 को ऑप्ट करोगे या ऑप्ट आउट करोगे। एक जैसे एक आपके पास फ्रूट है, आइदर उसे खाओगे या नहीं खाओगे, तो आइदर इसको सेलेक्ट करोगे इसको या नहीं सेलेक्ट करोगे, तो वही वाली चीज़ हो गई, ठीक है। इसीलिए हम लोग आइदर 0 लेंगे या फिर 1 लेंगे, कोई एक ही चीज़ तो आ जाएगा। मतलब 5 प्रेजेंट भी हो ना भी प्रेजेंट हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता, आइदर वो प्रेजेंट ही होगा या फिर नहीं प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए, ठीक है। सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये ट्विस्ट है, ठीक है। ओके, 35 सेकेंड्स। ओके, सो पढ़ लिया क्वेश्चन। आपको तो लग रहा होगा तो मैंने करवाया हुआ है, यहाँ देखो, ओहो इसका आंसर तो 9 है और ऑप्शन में तो कहीं 9 दिया ही नहीं है। अब यस, आपने सही पकड़ा। अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा होगा, 100 वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन, वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे लिखता था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, बिल्कुल सही। अब इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब यही होता है कि उसमें 2 प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही अगर 2 प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ऑड, ठीक है। तो हम लोग का अब 2 है, ये 5 है, तो हम लोग का ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि 2 प्रेजेंट ही ना हो, बिल्कुल,
ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि 2 प्रेजेंट ही ना हो। हम लोग के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं और इधर से सारे ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। तो 2 की पावर सिर्फ आ जाएगा 3, 2 इंटू आ जाएगा सिर्फ 3, तो वो कितना हो गया 6 इवन पॉसिबल फैक्टर्स। अब आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे तो कितने थे, वहाँ पे थे 9, ठीक है। तो कमी कौन कौन सी हुई मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे थे क्या, 1 था, 2 था, 4 था, 5 था, 10 था, 20 था, 25 था, 50 था, 100 था, ठीक है। तो अब टोटल हुए कितने 9 और अभी कितने बचे हैं 6। अब मैं 6 बता रहा हूँ, सिर्फ 2, 4, 10, 20, 50 और 100 निकले कितने 1, 5 और 25, मतलब जिसमें जिसमें सिर्फ इनसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो सब निकल गए, ठीक है। ओके, एक ऐसे क्वेश्चन फिर से ध्यान से, इस बार ध्यान से, ठीक है। ओके, हो गया, स्मार्ट हो रहे हो, सही हो रहे हो ना, उन लोग को समझ में तो आ गया ना। मैंने बिल्कुल पहला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना, इवन फैक्टर्स। इवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर किसी भी चीज़, किसी भी नंबर चीज़ का इवन होना चाहिए तो उसमें 2 होना चाहिए। और इसमें 2 आया कहीं, कहीं 2 आया नहीं आया, कहाँ है 275 में 2 तो डिविजिबल ही नहीं होता। 275 में 2 तो इवन, तो ये खुद इवन नहीं है, जब खुद ही इवन नहीं है तो उसका कोई फैक्टर इवन कैसे होगा, ठीक है। तो ये देखें, तो यहाँ पे क्या है, ये 5 का स्क्वायर से बनता है, 11 की पावर 1 से बनता है, ठीक है। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 6 हो जाएंगे, 3 2 जा 6, बट इवन 0, 0 इवन फैक्टर्स। तो सारे अगर इवन नहीं है तो सारे क्या होंगे, ऑड होंगे, बस शिट, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। So yes, your time starts now, 35 seconds. ओके, सो यस, क्या लगा आपको। अभी इवन तो है, ऐसा तो मत बोलना कि तुम्हें इवन नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ये भी, ये सारे फेमस वो हैं, ये जो नंबर है ना, 37 हुआ, 11 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 73, ये सब बहुत फेमस नंबर है। इन पर रिपीट आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं रैंडम उठा के आपको दे दिया हूँ, ये बहुत फेमस नंबर्स होते हैं। इनके बारे में आपके, इनके मल्टीपल्स आपको याद हैं तो फिर अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इन्हीं के ऊपर बार जब आपको बड़े नंबर आते हैं तो सब इन्हीं के ऊपर नंबर आते हैं। नहीं, अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये सारे नंबर्स ऐसे नोट कर लीजिए कहीं पे आप कॉलम बना के, काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 3 इंटू 73 की पावर 1, 2 की पावर 0 1 2 3 0 1, इसमें से बस ये वाला नहीं आ सकता, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 जा 6 इवन फैक्टर्स। टोटल कितना है 1 2, अब टोटल कितने हो जाएंगे 4 इंटू 2 8, 1 2 4 8, 73 46 292 और 584, ये कितने हैं 6 इवन फैक्टर्स। अब 6 में कौन कौन से आ जाएंगे 1, वो 6 में कौन से नहीं आएंगे, ये 1 नहीं आएगा, 73 नहीं आएगा, फाइन। सो आगे बढ़े, यू हैव 35 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट।
राइट, नो इश्यूज नो इश्यूज, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। सॉरी। सो क्या है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स? तो 124 को फिर से आपको वो करना पड़ेगा। तो 124 को जैसे ही आपने वो किया तो क्या आया, 2 की पावर 2 1। देखिए फिर से वही रिपीट आया, 31। ये सब मतलब फेमस नंबर है, इसलिए मैंने ऐसे नहीं कि मैंने हवाई में करके दे दिया, ठीक है। तो टोटल नंबर, टोटल कितने फैक्टर्स हमें तो इतना बताइए। टोटल अगर आप 3 × 2 6 बोल रहे हैं ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। कैसे, कौन से 6 होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 31 होगा, 62 होगा और 124। और इवन फैक्टर्स, इवन में बस ये नहीं आएगा, तो 2 × 2 4। तो कौन से नहीं होंगे? 1 2 4 3 31 62 124, ये तो सारे 6 फैक्टर्स हो गए। तो इवन में से कौन से नहीं होंगे? एक 31 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, जिसमें मतलब सिर्फ ये आ रहा है इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 4 इवन पॉसिबल फैक्टर्स आपके 124 के मिल गए, ठीक है। हाँ यस, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने आप को बता सकते, मतलब मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। फाइन, सो आगे बढ़े। ओके, और यस मेल भी कर सकते हो मेरा, यू विल गेट माई मेल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और यू कैन मेल मी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ, अगर आपको कुछ यस ट्यूशन्स भी हैं मेरे, ठीक है। और जिसमें मैं आपको आपके डिफेंस के एग्ज़ाम्स, बैंक के एग्ज़ाम्स और एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स के मैं आपको लाइव सेशंस भी होते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक बाकायदा पूरा वीडियो बना दूंगा, फ्रॉम देयर यू कैन सी कि सेशंस का क्या क्या रहता है। और इससे मतलब ऐसा मैं मतलब वहाँ पे अब आप बिल्कुल लाइव बैठे होंगे, मैं तो यहाँ पे अभी लाइव नहीं हूँ। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको क्वेरी रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। तो बट वहाँ पे क्या होगा, वो बिल्कुल लाइव होगा आपके साथ सामने, ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी एनी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन यू वांट, ठीक है। सो आगे बढ़ें। ओके, सो हियर इज़ इट, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे इवन लिख दिया, ठीक है। अगर मैं आपको वैसे बताता ही रहता हूँ, ये सब रिपीटेड उसमें आते हैं कि, ठीक है। अब आपको इतना तो चलो ठीक है, आप लोग तो हो गए तेज़, आप लोगों को मैंने सारे कॉन्सेप्ट तो बता दिए। अब आप बिल्कुल जल्दी से यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजीली आपने ज़ीरो सॉल्व कर दिया, ज़ीरो ही है, आपको पता ही चल गया यहाँ पे कोई हाई नहीं, देख लो आप। मैंने क्या लिखा, मैंने क्यों लिखूँगा जब यहाँ पे 2 की पावर 0 आ रही, तो मैं लिखने का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे इवन फैक्टर्स तो होंगे नहीं। बट ये बताइए कि 231 को आप ब्रेक कैसे करोगे, बताओ। मैं आपको चलो यहाँ पे ब्रेक का भी सिस्टम बताता हूँ कि मैं ब्रेक कैसे करूँगा, ठीक है। ब्रेक का ये सिस्टम आप देखिए कि 231 को जैसे ही हम लोग, मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि ये देखिए 2 + 3 + 1 बहुत जल्दी होता है ना। तो फिर कितना आ गया 6, और 6 इज डिवाइडेबल बाई 3, तो यही तो 3 की डिविजिबिलिटी होती। तो फिर ये 3 से तो डिविजिबल होगा, आपने जैसे ही 3 से डिवाइड किया वो आ गया 77। अब 77 में आपको तुरंत दिमाग में खट गया 77 तो 11 × 7 होता है भाई, हाँ बिल्कुल सही। अब आपने इतने बड़े 231 का सिर्फ 3 सेकेंड में ब्रेक कर दिया, 3 × 11 × 7, परफेक्ट। 3 × 7 × 11 यही होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 × 2 × 2। क्यों, 3 की पावर 1 आती है, 7 की पावर 1 आती है, 11 की पावर 1 आती है, तो 2 × 2 × 2, तो 8 फैक्टर्स होंगे। बट सब के सब क्या होंगे, ऑड फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 21 होगा, 33 होगा, 77 होगा और 231 खुद हो जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ें। ओके,
ठीक है. So yes, you got this 35 seconds to solve this question out. ठीक है. वैसे मैं 35 सेकंड क्या, मैं तो बिल्कुल ही नहीं देना चाह रहा था. मैं देना क्यों नहीं चाह रहा था? जिन लोगों ने, देखो अब आप आगे कर कर के पढ़ते हो ना, ये चीज़ होती है कि मैं जो बोलता हूँ आपको वो सुनाई नहीं देता और आप मिस कर जाते हो वैल्यू. मैंने अभी जस्ट इससे, जिन लोगों ने मेरी पूरी बात सुनी होगी तो उनको ये तो पता ही चल गया होगा कि मैं 231 में इतना कम टाइम क्यों दिया. 231 में इसलिए कम टाइम दिया क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया था ये पीछे वाला क्वेश्चन. 231 में अगर कोई भी इवन नहीं है तो सारे क्या होंगे? ऑड होंगे. ठीक है, क्योंकि एक कोई भी नंबर दो नंबर के तो उससे मिलते मिलता है इवन या फिर ऑड. अगर इवन की उसकी वैल्यू ज़ीरो है, कोई भी नंबर इवन प्लस ऑड ही होती है. ठीक है, कोई भी नंबर उठा ली, 3 को नंबर उठा लीजिए 1+2 हो जाएगा. ठीक है, या 3+0 हो जाएगा. आप 4 को उठा लीजिए, उसमें इवन आ सकते हैं. कोई भी नंबर आप इवन ऑड के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो फिर अगर उसमें एक वैल्यू पीछे देखें, अगर एक भी इसमें इवन नहीं है तो सारे क्या होंगे? ऑड होंगे. ठीक है, तो जब सारे ऑड होंगे तो अभी मैंने आपको बताया ना, ये 3 की पावर में आएगा, 7 की पावर में आएगा, ये 11 की पावर में आएगा. तो 2 × 2 × 2 करेक्ट. तो हो गई ऑड, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, ये तो अभी बता दिया. 3 × 77, 77, 7 × 11. अब पहले ही बताया था, सुन लेना चाहिए था. यही था कि 3 की पावर 0 हो जाएगा, 3 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1. तो यहाँ से 2 चॉइस है. तो 2 × 2 × 2 8 फैक्टर्स, और यही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है. ओके, श्योर. सो आगे बढ़ता. ठीक है, सो 35 सेकेंड्स. ओके. ओके, सो फिर से वही कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है? 1024. अगर आप थोड़ी भी एप्टीट्यूड मतलब आप एप्टीट्यूड का 35 सेकंड में 1024 पता ही चल गया होगा कि 1024 होता क्या है. और अगर आप ठीक है डायरेक्ट, अगर आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ये देख रहे होगे कि सारे ऐसे ही आते हैं जिसमें आपके नोन होते हैं नंबर्स. ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के रैंडम आपको, क्योंकि उस जो एग्ज़ामिनर है उसको भी पता है कि भैया जो स्टूडेंट वहाँ पे लिख रहा है, जो पेपर ये देने आया है, उसके पास भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम है एक क्वेश्चन के लिए. ठीक है, चाहे आधा मिनट मान लो, चाहे 20 सेकेंड्स मान लो, 35 सेकेंड्स, कुछ भी है, बट एक लिमिटेड है. तो कोई भी नहीं उठा के 1,62,463 का अब इसके फैक्टर्स निकालो, नहीं, वो नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा वो. नहीं, कोई भी नोन दे देगा. अब इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स 0 होंगे. क्यों? क्योंकि 2 की पावर क्या है? 10 है. 2 की पावर 10. 11 इवन फैक्टर्स, 11 टोटल फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स 0. फाइन. तो किसी भी 2 की पावर में अगर कोई भी नंबर लिखा तो उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? करेक्ट, 0. तो यहाँ पे कितने आए? 0 आने चाहिए, और आंसर वही है आपका. ठीक है, ओके. एंड यस, कोई भी अगर, मतलब मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा ये टॉपिक. अगर आपको डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, या फिर यू कैन मेल मी, और मेल मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा. फाइन. सो आगे बढ़ें. ओके, so you got 35 seconds to solve this question out.
सो क्या लगता है 48 है। अब 2 की पावर में तो कहीं आता नहीं है, 12 फोर होता है, या फिर आप इसे कह लो, मतलब सॉरी, हाँ तो क्या बोला था, 12 फोर होता ही है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 16 3 48 भी होता है। तो हम लोग को ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो ऑड फैक्टर में सिर्फ एक यही आना चाहिए, 2 की पावर में कुछ भी आया तो ऑड तो रहेगा नहीं, तो ये 2 की पावर 1 भी हमारे कोई काम का नहीं, 2 की पावर 2 3 4 ये सब कोई काम का नहीं है। सिर्फ हमारा काम का है ये, काम के साथ कौन आएगा, इन दोनों के साथ। तो 1 इंटू 2 चॉइसेस, तो कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ 2 फैक्टर्स। बट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 1 2 2 10, ठीक है। अब वो 10 फैक्टर्स कौन से होंगे मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। अब इसमें से 2 ऑड फैक्टर्स, ऑड सिर्फ यही आ रहा है, 1 आएगा और 3 आ जाएगा, फाइन, ओके। सो इजी हो रहा है ना क्वेश्चंस ऐसे इजी होते जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्या ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और यही समझेंगे ना, तो फ्री के मेरे प्लस मतलब जितने भी +2 +3 नंबर दे दिए गए हैं, इसका तो मेरे क्वेश्चन मतलब 20 सेकंड के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा क्वेश्चन कैसे है, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही है ना कि आइदर आपको पता होगा या फिर आपको नहीं पता होगा, ठीक है। अगर आपको पता है, ये मतलब सीधे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे आप क्या तुक्का लगाओगे, लो मैंने आपको ये दे दिया 0 1 2 4, इससे आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है ना। तो एग्जैक्टली ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट पता होगा या नहीं पता होगा, आपका टीचर ने आपको बताया होगा या आपने खुद पढ़ा होगा, या आपके टीचर ने नहीं बताया या आपको नहीं पता होगा, बस यही 2 होते हैं। मैंने यहाँ देखो आपको साफ साफ बता दिया, ये ईजी है, ठीक है। ओके सो आगे बढ़े, ठीक है। सो 195, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यू आर गेटिंग 35 seconds to solve this question out. Okay, fine. सो 195 है। सो 195 आपको क्या लगता है, ऑड फैक्टर्स बताना है, ठीक है। अब ऐसे ही 195 आपने देख लिया है तो आपको ये तो पता चल गया इसमें एक भी इवन फैक्टर नहीं है, इवन फैक्टर ही नहीं है, तो जितने ऑड फैक्टर होंगे उतने ही आपके टोटल फैक्टर होंगे। तो 195 को आप सबसे पहले देखते हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देख लिया ये भैया 5 से 1 हो रहा है और 3 से डिविजिबल है, 5 3, आपको सीधे पता चल गया 13 आ गया, तो 3 × 5 × 15। अब सबकी पावर 1 है तो यहाँ पे 2 चॉइसेस 0 और 1, यहाँ पे 2 चॉइसेस 0 और 1, यहाँ पे 2 चॉइसेस 0 और 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स या फिर बोलो टोटल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8 ऑड फैक्टर्स या फिर 8 टोटल फैक्टर्स, और इवन फैक्टर्स तो यहाँ पे 0 होंगे, फाइन, ओके। सो यस आगे बढ़ें, एंड यस मैं फिर से हर बार यही बोल रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा अगर किसी भी, जैसे आप, मैंने सिर्फ इसी पे नहीं बना रहा हूँ मैं, कोई मतलब काफ़ी सारे मैं मेरे इंडेक्स में जाके देखें, मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, तो फिर ये नहीं है कि आप कोई भी रैंडम उठा के, क्योंकि सारे वीडियो पहले से लिंक्ड है, एटलीस्ट कम से कम एक बार वो सारे वीडियोस देखें, उसके बाद उसी के ही इंडेक्स में नेक्स्ट वीडियो देखेगा, सो दैट कि आपको कोई मिस ना हो कॉन्सेप्ट। मैं तो बस इतना चाह रहा हूँ कि आपके नंबर कहीं ना जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो मैंने तो ये दिया नहीं, अब आप क्या करोगे, फ़ायदा क्या है, ठीक है। अब आपको तीनों चीज़ें निकालनी है, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स एंड टोटल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये 310 नंबर है,
फाइन. So your 35 seconds starts now. ओके गाइस, टाइम्स अप. ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत नहीं, आपको बस एक टोटल फैक्टर्स और इन दोनों में से कोई एक फैक्टर निकालना था. आपके सारे आ जाते हैं, और वो भी निकालने में जैसे ही आपने वो किया, इसका वो मतलब देख लिया होगा कि 31 आ रहा है 2 × 5. मुझे तो यहाँ से देख को पता चल गया. ठीक है, तो कैसे आएगा? 2 आएगा, 5 आ गया, 31 आ गया. ये तो मैंने सोल्यूशन तो बस सॉरी गलती से लिख दिया, बट ये सोल्यूशन ये किसका है? टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का लिख दिया है, बट यहाँ देखिए सारे लिखे मैंने. ये 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया. अब इसमें टोटल फैक्टर्स कैसे आ जाएंगे? आइदर 0 1 दोनों ले लो 2 से, 5 से 0 1 दोनों ले लो, 31 से 0 1 दोनों ले लो. तो 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 8 टोटल फैक्टर्स आ गया. फाइन. ओके, फिर यहाँ से इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे आएंगे? इवन में बस ये नहीं आएगा, 2 की पावर 0 नहीं आएगा, एक 2 तो एटलीस्ट आएगा, तो 2 की पावर 1 आएगा, और ये सारे आ जाएंगे. तो 1 × 2, क्योंकि 5 0 कुछ भी आ सकता है 0 1 में, 31 में भी 0 1 में कुछ भी आ सकता है. तो 1 × 2 × 2. अब यहीं पे ऑड में बस एक ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा. तो 0 1 में 5 में 0 1 कुछ भी आ सकता है, 31 में 0 1 कुछ भी आ सकता है. बट अब यहाँ से देख रहे होगे ना, टोटल फैक्टर्स में एक रिलेशन आपको नज़र आ रहा है. मैंने अभी तक रिलेशन नहीं बताया था आप, बट कर उसी से सारी चीज़ें रहे थे. क्या? टोटल फैक्टर्स इज इक्वल टू इवन फैक्टर्स प्लस ऑड फैक्टर्स 8 + 4. बट ये मत कहीं, मैं अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये डाउट सॉल्व करवाने के लिए. ये मत सोच लेना कि भैया टोटल फैक्टर्स हमेशा इक्वल डिवाइड होता है, मतलब इक्वली 4 में ऑड आएंगे और इक्वली 4 में इवन आएंगे. ठीक है, ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है. यू आर अगेन गेटिंग 35 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट. इसके में भी सारे निकालने 600 के ऑड, इवन एंड टोटल फैक्टर्स. फाइन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फाइन, ठीक है. तो कुछ हुआ क्वेश्चन में? देखो अब क्या होगा कि ये देखो यहाँ पे कितना है? 600 फैक्टर 600 है. अब 600 को फैक्टर कैसे करेंगे? सीधे सीधे आपको इतना तो पता चल गया कि ये 100 × 6 होता है. 100 × 6 का मतलब हो गया 5 की पावर 2 आ जाएगी, और 2 की पावर 2 तो आएगी. उसके साथ बचेगा क्या? 6. और 6 में क्या होता है? 2 आता है और 3 आता है. तो 2 की पावर 1 बढ़ेगी, 2 से 3 आ जाएगी, और 3 की पावर 1 आ जाएगी. 5 की पावर एज इट इज़ 2 आ जाएगी. अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो फिर हमारे पास 4 यहाँ पे आ जाएंगे पॉसिबिलिटीज़, चॉइसेस. 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे हैं 3 की पावर 1. तो 3 की पावर 1 में भी हमारे पास कितने आ गए चॉइसेस? 3 की पावर 0 आ गए, 3 की पावर 1 आ गया. ठीक है, सो अब आप यहाँ पे देख रहे हो 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 में भी हमारे पास चॉइसेस कितनी आ गई? अरे यार, ये सोल्यूशन मत देखना, ये सोल्यूशन शायद गलती से लिख गया होगा. प्लीज़ जस्ट नेगलेक्ट दिस सोल्यूशन. फाइन, सो हाँ, नेगलेक्टेड, कट कर दो. फिर 5 की पावर 2 है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? 5 की पावर 0 आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा, 5 की पावर 2 आ जाएगा. ठीक है, सो हमारे पास इन टोटल,
ठीक है, इन टोटल। अब ये हो क्या रहा है, ठीक है, तो हम लोग को कोई एक नंबर बनाना होता है। जैसे ये समझिए कि हमारे पास एक वो है, एक हम लोग को समझ लो, मतलब ये अब आप सोच रहे होंगे मैं ये इनमें से क्यों उठाऊं, क्यों इसलिए उठाना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्या बोला था कि कोई भी एक नंबर जो कि एक मतलब एक n नंबर एक m नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कोई भी रिमाइंडर ना आए, तब उसको बोला जाता है वो n इज़ अ फैक्टर ऑफ m। ठीक है, तो ये प्राइम में डिवाइड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो n को बनाने के लिए इसी में से हम लोग को पिक करना पड़ेगा। तो हम लोग को जब इसी में से चॉइस है तो हम लोग इसी से ही फैक्टर्स बनाएंगे। इसीलिए हम लोग इनमें से देखते हैं कि कौन सा हम लोग पिक कर सकते हैं, कौन सा हम लोग नहीं पिक कर सकते हैं। फाइन। सो ऑड फैक्टर्स में हमको बस ये चाहिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। हम लोग को कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो इधर से हम लोग क्या क्या पिक कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग पिक कर सकते हैं 3 की पावर 0, यहाँ से पिक कर सकते हैं 3 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ से पिक कर सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो हम लोग कितना आएगा, यहाँ से 2 आ गए, यहाँ से 1 आ गया तो 1, यहाँ से दोनों आ गए तो 2, यहाँ से तीनों आ गए तो 3। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 6 ऑड फैक्टर्स। फाइन। ऐसे इवन के लिए हम लोग को बस ये नहीं चाहिए, 2 की पावर 1 पिक कर सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 2 पिक कर सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 3 पिक कर सकते हैं। फाइन। वहीं 3 में 3 की पावर 0 पिक कर सकते हैं और 3 की पावर 1 पिक कर सकते हैं। फाइन। ओके, सो 5 की पावर में क्या हम लोग पिक कर सकते हैं, 5 की पावर 0 पिक कर सकते हैं, 5 की पावर 1 पिक कर सकते हैं और 5 की पावर 2 पिक कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, हम लोग को एक इवन बनाना है। इवन में एटलीस्ट 1 और 2 आना चाहिए। 2 से क्या 4 इवन नहीं है या 8 इवन नहीं है, सब इवन है। 2 भी इवन है बट 3 इवन नहीं है। क्यों, 3 में एक भी 2 नहीं आता है। तो हम लोग सारे ये हम लोग पिक कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग सब पिक कर सकते हैं तो हम लोग को बस ये नहीं पिक करना है। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब हो गया 3। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 में आ गया 2। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में आ गया 3। तो मतलब कितना हो गया 18 इवन फैक्टर्स। अब मैं आपको 2 तरीके से सिखाता हूँ, इधर से दिखाता हूँ। ये टोटल कितना हो, 6 + 18 24। वैसे देखो हम लोग 2 की पावर यहाँ पे 0 भी पिक कर सकते हैं, 2 की पावर 1 भी पिक कर सकते हैं, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो यहाँ पे कितने हुए 4। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 पिक कर सकते हैं, हुआ कितना 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 भी पिक कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हुआ 3। तो 4 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6 4 24। ऐसे से कितने आ रहा था 6 + 18 24 और वैसे से कितने आ रहा है 24। तो हम लोग मैंने क्या बताया था, टोटल फैक्टर्स इज इक्वल टू इवन फैक्टर्स प्लस ऑड फैक्टर्स। सो 24 इज इक्वल टू 18 + 6। और मैंने ये भी आपसे लास्ट क्वेश्चन में कहा था, ऐसे मत सोचिएगा कि 24 का अगर टोटल फैक्टर्स है तो 12 इवन है 12 ऑड है। यहाँ पे देखें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये देखें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस वाज योर फाइनल। सो बिफोर गोइंग वेट अभी कुछ आपको बताना है। आई थैंक यू टू ज्वाइन या एज यू ज्वाइन विद मी फॉर द होल सेशन। ओके, एंड यस प्लीज़ मैंने सेशन आपके लिए कंडक्ट किया है। सो जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज़ अभी चाहिए मत, प्लीज़ यही है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एटलीस्ट मतलब ठीक है, मैं नहीं बोल रहा आप सबके साथ जाके अपने प्रोफाइल में सब जगह शेयर कर दो, नहीं, एटलीस्ट उन लड़कों के साथ तो शेयर कर दो ना कि जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही है, जो लोग कोई ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, उन लोग के साथ तो एटलीस्ट ये वीडियो शेयर कर देना। अपने 2 से 3 फ्रेंड्स के साथ तो ऐसे होंगे ना जो उनके साथ तो शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को मैं इसलिए नहीं बोल रहा चैनल को सब्सक्रिप्शन के लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी जैसी वीडियो आती है ना आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ वहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दे सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए मेरी वीडियो आके, सो दैट जैसे आप कर रहे हो आप पढ़ लें इससे। फाइन, okay, so yes, we'll continue our number system in the next session. I hope you like the session. Please like, share and comment. और कमेंट आप कुछ भी कर सकते हो सो दैट आपका कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड। और यस, अगर आपको मुझे मेल भी करना है रिगार्डिंग ट्यूटोरियल्स और एनीथिंग, फाइन, यू कैन मेल मी ऑल्सो।
ओके मेरा मेल डिस्क्रिप्शन मतलब वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा यू विल गेट माई मेल ऑल्सो. ओके यू कैन मेल मी क्वेरी एज वेल रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी क्वेश्चन एनी कंटेंट फाइन. ओके सो हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय.